Good morning, students. Good morning, friends. Myself, Radhesham Beragi. I'm again here for your civil engineering questionnaires or your competitive exams relevant to the civil engineering and RSMSSB, RPSC, and all that, right? So, what we will do from today onwards, we will study in these according to this schedule. I have written the schedule here. We will be study daily routine schedule according to this. The first we will study design of deep foundation. I will bring either one topic or some questions related to design of deep foundation. It will continue for the book of R.S. Kurmi, right? And then second one is Baraki's notes, which the notes which I have made from different books are like R. Agor and some other engineers academy, IS Master and Gupta and Gupta. Oh, from all those books I have made some notes. Okay, so we will study that also, some part of that. And third one is Rajasthan GK, which will contain history, geography, art and culture, right? The fourth we will study questions answer of Engineers Academy book. There are 7500 questions given, so we will study according to that. Okay, I will cover almost all the questions. So you would have approximate more than 20,000 questions along with the theory part, important theory part, along with my notes. So we will be succeeded, don't worry, हम जीतेंगे इस एग्ज़ाम में। इन चार बिंदुओं के माध्यम से मैं प्रतिदिन आपको अध्ययन करवाता रहूँगा। हम स्टार्ट जिस जगह से कर रहे हैं वो ये है। अब डिजाइन ऑफ डीप फाउंडेशन आगे चलते जाएंगे, हम स्टील स्ट्रक्चर आएगा, फिर अपन पीछे चलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स आ जाएगा, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आएगा, ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आएगा which is very important. Okay, surveying आएगा. So according to that you will be studying here. You will again studying the same thing in point number 4. You will again study the same thing in point number 2. So all these will be covered up by studying according to this schedule. Okay, so let us come whichever is we left yesterday. This is very important question, can be asked from this is very important concept or maybe very important point, I can say. See, this is the point, design of deep foundation. Yesterday what we have studied, we have studied design of shallow foundations, okay, in which we have studied the minimum depth and the q0. What is q0? Q0 is the bearing capacity, right? And the maximum upward pressure we have studied, then the maximum bending moment we have studied, and the punching shear intensity we have studied for the circular. All these things we have studied, yes, right? So for today I brought some topic for you, or we will be continue for today also. The point number 2 is design of deep foundations. डीप फाउंडेशन क्या है, तो कैसे डिज़ाइन करते हैं? इसमें तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो एम मैक्स डब्ल्यू एस स्क्वायर बाई 8, एम मैक्स डब्ल्यू एस स्क्वायर बाई 47, एम मैक्स डब्ल्यू एस स्क्वायर बाई 90. एग्जामिनर जनरली आस्क्स क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, और द क्वेश्चंस बिकम फ्रॉम ऑल दीज 3 points. So anyway, we will study the entire theory part, because the important theory part is written here, not everything. Okay, so let us read one by one. The first point is what? The first point is a reinforced concrete pile is usually designed as a column, considering it fixed at one end and hinged at other end. Got it? Fixed at one end and hinged at other end. One question can be asked from this. Okay, they can ask what is an reinforced pile. They can give both end free, one end fixed, other end free, one end hinged, other end fixed, one end fixed, other end hinged. So one end fixed and other end is hinged will be correct for this. So point number 2, the defective length of reinforced concrete pile is taken as 2/3 of length embedded in firm stratum soil, right? The design load being taken as 50 to 100% higher to take care of impact.
Point number 3, the longitudinal reinforcement for reinforced piles having length up to 30 times its list width should not be less than 1.25% of the gross sectional area per pile. Okay, and it is increased for a length above 40 times the list width of the pile. Point number 4, the volume of lateral reinforcement with at least 5 mm diameter bar provided in the form of links should not be less than 0.2% of the gross volume of the pile. Okay. Point 5, the center to center spacing lateral reinforcement should not exceed half the list width of the pile at ends of the pile for a distance of 3 times the list lateral dimensions. The lateral reinforcement should not be less than 0.60% of the gross volume of the pile. Right. For point number 6, when the pile has to penetrate hard stratum soil, the lateral reinforcement at the top of the pile for a distance of 3 times the width should be in the form of helix. In addition, the longitudinal bars should be held apart by provision of spreaders of 12 mm to 16 mm bar provided at interval of not exceeding 1.5 meters. In order to prevent the outward displacement of the bar, 6 mm diameter links should also be provided with the spreaders. The pile should be provided with cast iron soles at its lower end. Okay. Point number 7, when a pile is lifted by means of derrick, it is subjected to bending moment due to its own weight. A pile of length less than 12 meters is usually suspended from its middle point. The longer piles are usually suspended at 2 or 3 points suitably spaced at its length so that bending moment is as small as possible. Now, very important point number 8. When a pile of length carrying uniformly distributed load W per unit length is suspended at one point, then maximum bending moment maximum W square by 8. Okay. When the pile is suspended at 2 points, then the maximum moment 8 point suspension W square by 47. Okay. And then in such case, the hogging moment at the point of suspension will be equal sagging bending moment at the middle part of the pile. At the point of suspension from either end of pile is equal to 0.207 L. Okay. Point number 10. When the pile is suspended at 3 points, then the maximum bending moment will be W square by 90. So 3 you should remember, W square by 8 at 1 point, at 2 point W square by 47, at 3 point W square 90. In such a case, the bending moment will be least when the end points are located at a distance of 0.15 L from the corresponding ends. You also remember the distance 0.15 L from the corresponding, where the end points are located, moment will be least. And here you can see if the point of suspension from either end of the pile equal to 0.207, then the point of suspension will be equal to sagging bending moment at the middle of the pile, right? Hogging and sagging will be equal. So this we have studied. Okay, so this is your design of D foundations. Let us move to the point number 2, that is what? Rade-Bareges notes. Rade-Bareges notes. So Rade-Bareges notes I have studied just let us study approximate 2 to 3 questions only. See, this is question number 39. भारतीय नौसेना में विशाखापट्टनम में क्वारंटाइन सुविधा की स्थापना वित्त आयोग के राजकोषीय मुहिम करने की रूपरेखा की समीक्षा के लिए N.K. सिंह की अध्यक्षता में समिति का निर्माण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज के साथ में ये किया है और किए हैं, और अर्पित के तहत 2 वर्ष में 1.8 लाख से अधिक शिक्षकों को किया प्रशिक्षित। और N.K. सिंह 15th वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। नवरोज़ का त्यौहार सबसे पहले बलबन के द्वारा मनाया गया। हैश मी टू अभियान ने महिलाओं के शोषण को उजागर किया है, जो कार्यक्षेत्र में स्वच्छ वातावरण के निर्माण में सही प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये नकारात्मक पहलुओं से बचा नहीं है, इस पर भी एक टिप्पणी की बात कही है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिसोदिया राजवंश का संस्थापक हमीर था। ठीक है, हमीर के बाद खेता, खेता के बाद लाखा, लाखा के बाद मुगल, मुगल के बाद कुंभा, कुंभा के बाद सांगा, सांगा के बाद प्रताप।
ओके। जोधा ने मंडोर पर 1453 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। कुंभा की उपाधियाँ हैं राणो रासो साहित्यकारों द्वारा दिया गया, अभिनव भट्टाचार्य संगीत वीणा बजाता था, समुद्रगुप्त भी वीणा बजाता था, औरंगजेब भी वीणा बजाता था, अकबर नगाड़ा बजाता था। ठीक, वीणा कौन कौन बजाते थे? अभिनव भट्टाचार्य कुंभा बजाता था, समुद्रगुप्त बजाते थे और औरंगजेब भी बजाते थे, औरंगजेब भी बजाता था, अकबर नगाड़ा बजाता था। हिंदू सुल्तान बोला है हालदान, चाप, छाप गुरु, सेल, परम गुरु, नव्य गुरु आदि उपाधियाँ भी दी गई कुंभा को। तात्कालिक एसिस्ट शासक, ओके, तात्कालिक मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन शाह महमूद खिलजी शम्सबर्ग, ठीक है, ये रहे हैं। फिर चाचा मेरा के पुत्र मेपा अक्का भागकर महमूद खिलजी के पास गए हैं। सारंगपुर मालवा विजय 1437 ईस्वी, कुंभा विजय महमूद खिलजी। इस युद्ध की विजय को उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया है, याद रखना। जो सारंगपुर मालवा की विजय हुई थी 1437 में, इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। विष्णु भक्त था कुंभा। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह अरबी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके रिलेटेड कि मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। राजस्थान पुलिस का प्रतीक भी चिन्ह भी है विजय स्तंभ। जेता मापा पामा पूजा ये इनके प्रस्तुत बनाने वाले हैं, ठीक है। 9 मंजिला है, 120 से 122 फीट ऊंचा है, 197 सीढ़ियाँ हैं, 90 लाख रुपए उस समय खर्च होते। 1440 से 1448 ईस्वी तक के बना, 9वीं शताब्दी। जेता पापा पूजा ने 9वीं शताब्दी, नहीं 9वीं, ठीक है। और 1949 ईस्वी डमरू की तरह है। फिर 9 बार अल्लाह तीसरी मंजिल पे लिखा है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है 9वीं मंजिल पे, में प्रथम डाक टिकट जारी हुआ था 1949 में, ठीक है। वहीं पार्श्व में आदिनाथ और ऋषभ देव का कीर्ति स्तंभ भी है। थोड़ा आगे कीर्ति स्तंभ है 7 मंजिला 75 फीट, ठीक है। जीजा ने बनाया कीर्ति स्तंभ, इसे साड़ियों का शौक था। कीर्ति स्तंभ किसी जैन तीर्थंकर को समर्पित है। 24 स्तंभ महावीर स्तंभ, महावीर स्वामी हुए हैं। 23वां पार्श्वनाथ, एक आदिनाथ ऋषभ देव है। सो ये मेरा पॉइंट। और भी बिंदु है कीर्ति स्तंभ के बारे में जो अपन पढ़ लेते हैं कि कीर्ति स्तंभ जो है प्रशस्ति, विजय स्तंभ की सबसे ऊपरी मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी हुई है कुंभा के बारे में। ये अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी है, संयुक्त रूप से अभिनव अभी कभी अत्रि और महेश, ठीक है। और फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान बोला है। जेम्स टॉड ने कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया है। शम्स का नागौर बारो मुसाइद खान ने शम्स खां भगा दिया, ठीक है। मुसाइद खान ने शम्स खां को भगा दिया। फिर कुंभा की सहायता से शम्स खां को वापस गद्दी मिली थी, अच्छा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन शाह गुजरात से 1456 ईस्वी में चंपानेर में मिलवा, ठीक है, मालवा। महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा। माणा कुंभा माणा प्रताप संग्राम सिंह के सबसे महान राजा रहे हैं मेवाड़ के, माणा कुंभा और माणा संग्राम सिंह। कुंभा ने मालवा विजय द्वितीय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बदनौर भिलवाड़ा में बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 41 हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा नोट्स भी हो गया है, मैं डेट लगा देता हूँ, ठीक है। अपन स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी, मैं यहाँ डेट लगाता हूँ आज 8 जनवरी 2021, ओके, फॉर इंजीनियर सिविल, ओके, विद राधे बैरागी। सो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ। मेरे पास ऐसे नोट्स की 8 से 10 बड़ी बड़ी रजिस्टर्स हैं, तो उन रजिस्टर्स के माध्यम से अपन इसका अध्ययन करेंगे। और ये भी मैं यहाँ तक अपन ने कर लिया है, फिर कल यहाँ से वापस शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं तारीख लगा देता हूँ 08/01/2021 फॉर JEN, राइट, ये मैंने लगा दिया, चलो ठीक है। और फिर अपन चलते हैं जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, फिर छोटे छोटे से पार्ट ही हम करेंगे, ठीक है। और
मैं कंटिन्यू रखूँगा। व्हाट विल बी द पार्ट, सी दिस इज, यहाँ तक मैंने कल पढ़ा है, तो अब आपको मैं यहाँ तक से पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद अपन और आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे थे पशु संपदा राजस्थान में, ठीक है। और पशु संपदा में क्या पोजीशन है 2012 के मुताबिक, सर्वाधिक और न्यून पशुधन वाले 5 जिले 2012 के मुताबिक क्या है। देखो सबसे ज़्यादा पशु बाड़मेर में है। कुल पशु तो राजस्थान में कुल पशुधन कितना है, 5,77,00,000 है, ठीक है। उसमें से जो सर्वाधिक मामले में बाड़मेर में है लगभग 53 लाख पशु है, फिर जोधपुर में है लगभग 35 लाख, फिर जैसलमेर में 31 लाख है, नागौर में 31 लाख है, ठीक है, और जयपुर में 28 लाख है। तो सबसे ज़्यादा पशु बाड़मेर में है, और टॉप 5 रैंकिंग में फिर जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, जयपुर है। और न्यूनतम में सबसे कम धौलपुर में है, फिर कोटा में, फिर प्रतापगढ़ में, सवाईमाधोपुर, फिर बारा में है। कोटा में 52,000 के आसपास है, सॉरी धौलपुर में 52,000 के आसपास है। कोटा में 64,444 सॉरी कोटा में 5,29,000 है, धौलपुर में। कोटा में 6,44,000 है, 7,65,000 प्रतापगढ़ में है, फिर 8 लाख माधोपुर में है, फिर 8,08,06 बारा में है। तो सबसे ये 5 न्यूनतम जिले 5 बड़े हैं। और फिर सर्वाधिक और न्यूनतम पशु घनत्व वाले 5 जिले कौन से हैं, पहले दौसा और राजसमंद में सर्वाधिक घनत्व है, और फिर उसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, जयपुर है। वैसे सबसे कम घनत्व जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, फिर चूरू, बारां, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कुल पशु घनत्व 169 है, ठीक है। और ट्रिक का आप मत कीजिए याद, आपको डायरेक्ट ही याद रखना होगा, ये ट्रिकें बहुत परेशानी करती है बाद में। सर्वाधिक न्यूनतम कुल गाय वाले 5 जिले 2012 के मुताबिक उदयपुर है जिसमें 9 लाख गायें हैं, फिर बीकानेर है जिसमें 9 लाख गायें हैं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा, उसमें 9,72,000 है उदयपुर में, बीकानेर में 9 लाख है। जोधपुर में 8,48,000 गायें हैं, बाड़मेर में 7,88,000 और भीलवाड़ा में 7,17,000 गायें। ये टॉप 5 जिले हैं, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा। सबसे न्यूनतम में धौलपुर है जहाँ पे 59,000 गायें हैं, करौली में 10,000 1,01,000 ही है, और सवाईमाधोपुर में 1,10,000 है, फिर दौसा में है, फिर सिरोही में। इस तरह बढ़ती जा रही है, ठीक है। गायों की संख्या है 1 करोड़ 33 लाख के आसपास गायें हैं, ठीक है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा याद रखना सर्वाधिक में, न्यूनतम में धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। और उसी तरह अपन आते हैं सर्वाधिक न्यूनतम भैंस वाले जिलों में 2012 में सर्वाधिक भैंसें जयपुर में है, फिर अलवर में है, फिर भरतपुर, नागौर में है। न्यूनतम में जैसलमेर सबसे कम भैंसें हैं, फिर प्रतापगढ़, सिरोही और बीकानेर, ठीक है। और उसके बाद में आते हैं अपन सीकर के मामले में भैंसें सबसे 5वें स्थान पे है ऊपर से, और नीचे से 5वें स्थान पे बाड़मेर है, ठीक है। कुल भैंसों की संख्या 1,29,00,000 के आसपास है। फिर सर्वाधिक न्यूनतम बकरी वाले 5 जिले 2000 में, सर्वाधिक बकरियाँ बाड़मेर में है, फिर जोधपुर में है, फिर जैसलमेर में, नागौर, उदयपुर में। न्यूनतम धौलपुर में है बकरियाँ, फिर उससे ज़्यादा कोटा में, फिर भरतपुर में, बारां में। टोटल 2,16,00,000 के आसपास बकरियाँ हैं। फिर आते हैं सर्वाधिक न्यूनतम भेड़ वाले 5 जिलों में, उसमें पहला है राजस्थान में कुल भेड़ वंश 90 लाख के आसपास है, ठीक है। बाड़मेर में सबसे भेड़ें हैं, फिर जैसलमेर, पाली, जोधपुर, बीकानेर में। फिर सबसे कम में बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, धौलपुर और कोटा, ये भेड़ों का हुआ 90 लाख के आसपास भेड़ें हैं। फिर आते सर्वाधिक न्यूनतम ऊँट वाले 5 जिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऊँट, सबसे ज़्यादा ऊँट जैसलमेर में मिलेंगे, फिर बीकानेर में मिलेंगे, और फिर बाड़मेर में। सो जेबीबा ऐसे याद कर सकते हो, सबसे बात ज़्यादा जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, और फिर बाड़मेर में, और फिर चूरू, हनुमानगढ़ है, ये याद रख लेना। 3,25,000 ऊँट बचे हैं। सबसे कम प्रतापगढ़ में है, फिर झालावाड़ में है, और फिर धौलपुर में है, और फिर बांसवाड़ा में है, और फिर बारां में है। तो इस तरह मैंने ये थोड़ा सा पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। इस तरह मैं कल और एक्सरसाइज लेके आऊँगा, प्लीज़ बी विद मी, ओके। तो मैं यहाँ तारीख लगा देता हूँ, कल अपन ये यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है। कल अपन पढ़ेंगे प्रदेश में गोवंश के बारे में, अलग अलग जगह पे क्या क्या गोवंश है,
तो ये मैंने तारीख लगा दी। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। So 8/01/2021 फॉर जे, राइट। ये हो गया अपना आज का पोर्शन, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद में मैं आता हूँ आपको एक छोटा सा और अपन वार्म अप कर लेते हैं इसका सिविल का। तो सिविल में मैं पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। 5 क्वेश्चन ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा आज आपको। फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट के 5 क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, या फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट करने दीजिए। आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। ओके, मैं कल पढ़ रहा था, अच्छा ये मैंने कवर अप कर लिया, नहीं कर पाया था मैं कल कवर अप। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन कल किए थे, ठीक है, तो आपको भी मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड शियर एंड टॉर्सन में, ठीक है। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो द वैल्यू ऑफ टाउ वी फॉर अ बीम ऑफ वेरिंग डेप्थ इज व्हाट? VU प्लस माइनस MU बाई T tan बीटा अपॉन BT। प्लीज़ मेमोराइज दिस, प्लीज़ आप इसको अपने दिमाग में छाप लीजिए, जस्ट पेस्ट इट इन योर माइंड। VU प्लस माइनस MU बाई D tan बीटा अपॉन BT, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 50 is for exposure conditions severe and very severe reduction of 5 mm in nominal cover can be made if grade is what? M35 and above. Okay, for exposure conditions severe and very severe reduction of 5 mm in nominal cover can be made if grade is M35 and above. Okay, this is very important question. The spacing increases when the number of legs for shear reinforcement is increase। अगर आप नंबर ऑफ लेग्स को बढ़ाते हो तो स्पेसिंग बढ़ेगी, ठीक है। shear reinforcement in RCC beam is provided to resist, क्यों? डायगोनल टेंशन, ये आपको आता ही है। यूजिंग 2-legged vertical stirrup of 6 mm diameter mild steel, जिसमें AP 250, final spacing to resist 70 kilonewton shear force, size of beam is 300 mm into 1000 factor है। So what he is asking using 2 legs vertical strip of 6 mm diameter mild steel, final spacing to resist 70 mm, what will be the watt? Okay, so we can calculate through this SV 0.87 Fy ASV D upon V. So ASV upon BSV greater than equal to 0.4 upon 0.87 Fy 0.75 D and 3. Okay, 3 things are given. I will give you the solution of 59. This is the question number of 59. What is given? इसको आपको दिमाग में छाप लेना है, 2-3 बार छाप लोगे तो फिर उसके बाद ये बुरा नहीं लगेगा आपको। तो स्पेसिंग ऑफ शियर फोर्स RYF रेनफोर्समेंट कितना, देखो मिनिमम क्या लेंगे अपन तीनों का। SV इक्वल टू 0.87 Fy ASV D अपॉन V, V दिया, Fy दिया, ASV D दिया हो, और ASV अपॉन BSV ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 0.87 Fy, और तीसरा है 0.75 D, और चौथा है 300 है। अब इनमें से जो मिनिमम बोलेंगे, तो पहला हमने कैलकुलेट किया, Fy की वैल्यू रख दी अपने, ASV की वैल्यू रख दी जाओ, ठीक है, और D की वैल्यू रख दी अपने, और अपने V क्या है, शेयर फोर्स रख दिया अपने, ठीक है। तो इस तरह जब शेयर फोर्स सारी चीज़ें रख दी तो अपने पास क्या आया, 175 आ गया। फिर दूसरी बार में अपन ने ASV भी ये रखा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई अपने पास, 102.9। तीसरी बार 0.7 D आई, D 75 हो गया। D आप जानते हो कितना है, D इक्वल टू ये अपना 8 10 D 6 mm 1000 को 1.75 75, और फिर 300 है। तो सबसे मिनिमम इसमें मेरे को 102 लगी है, ठीक है। तो इसीलिए अपन स्पेसिंग क्या लेंगे इसमें, द करेक्ट आंसर इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बी, 102 इज कमिंग आउट। तो इन तीनों का देखो, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ तक सही है। सो बाय गाइस, कल अपन फिर आते हैं इसी टाइम मॉर्निंग में 5 से 8:30 के बीच में मैं ये प्रिपेयर करता हूँ। तो आपका भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ, जब आप बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो मैं लाइव करने लगूँगा, तो फिर अपन सभी लोग जो मॉर्निंग में 5 से 8:30 के बीच लाइव पढ़ेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर डियर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।